شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: بڑگام اسمبلی حلقے کے لیے آج 8 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ عرس شیخ العالم پر چرار شریف میں عظیم الشان تقریب۔ دیپاولی کا تہوار، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ وزیر صحت کا بارہمولہ ضلع کا دورہ۔ اور میوہ صنعت کو درپیش مختلف مسائل۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کیا آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000258۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سیشن 2025-2026 کے لیے ڈیزائن انوویشن سینٹر کے تحت 1 سال کے ڈپلوما کورسز جیسے کہ ڈپلوما ان کشمیری، ہینڈی کرافٹس، فوڈ پروڈکشن، ڈیزائننگ اور ڈریس میکنگ کے لیے موزون امیدواروں سے داخلے کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ مزید جانکاری اور رجسٹریشن کے لیے خواہشمند امیدواروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر رابطہ قائم کریں۔ علاج معالجہ تو طبی واتنیارس مز 9 ورت آزمومت نو امندی بی آر میڈسٹی کشیر اندر جدید ساز و سامان ہت بیمارن ہند خاطر نو زمانک نو اطمینان تو صحت یابی ہز نو امید۔ امندی بی آر میڈسٹی ٹینگ پورہ بائی پاس سری نگر۔ شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج علمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عرس کے سلسلے میں سب سے بڑی تقریب چرار شریف بڑگام میں منعقد ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ آج وادی کے مختلف ضلعوں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے چرار شریف آ کر شیخ العالم کی درگاہ پر حاضری دی۔ اسی دوران بڑگام حلقہ انتخاب میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ سیاسی گہما گہمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ آج نیشنل کانفرنس کے نامزد امیدوار آغا سید محمود، بی جے پی کے نامزد امیدوار آغا سید محسن، پی ڈی پی کے امیدوار آغا سید منتظر، عوامی اتحاد پارٹی کے امیدوار نذیر احمد خان اور 4 دیگر امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بڑگام سے فون لائن پر موجود ہیں یونس پرے، جو عرس شیخ العالم اور بڑگام حلقہ انتخاب کی تازہ سرگرمیوں کا احوال بیان کریں گے۔ جی یونس۔ وادی میں آج حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جبکہ بڑگام سیاسی حلقے میں آج پرچہ نامزدگی کے حوالے سے رہی گہما گہمی۔ تفصیلات کے مطابق اسمبلی حلقہ بڑگام میں ان دنوں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہے اور یہ سیگمنٹ پچھلے کئی دنوں سے سرخیوں میں ہے۔ وہی آج پرچہ نامزدگی کے آخری روز حلقہ میں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملی، کیونکہ آج پہلے بی جے پی کے نامزد امیدوار آغا سید محسن کو ایک جلوس کی صورت میں ڈی سی آفس تک پہنچایا گیا، جبکہ ان کے ہمراہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جموں کشمیر اشوک کول اور حزب اختلاف کے لیڈر
सुनील शर्मा भी मौजूद थे। और सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने इलाके के लोगों को धोखा देने और खानदानी सियासत को फरोग देने का इल्जाम लगाया। बकौली शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी इतिमाद खो चुकी है। वही लोगों ने अब्दुल्ला खानदान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और वो इन्हें मुस्तरद कर देंगे और अवाम अब खानदानी सियासत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वही उसके बाद पीडीपी के नामजद उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहदी को वर्कर्स की जानिब से जुलूस की सूरत में डीसी ऑफिस के गेट तक पहुंचाया गया, जबकि उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडरान जिनमें गुलाम नबी लोन हाजुरा, एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा और जिला सदर पीडीपी मोहम्मद यासीन भट्ट भी मौजूद थे। इधर एआईपी के नामजद उम्मीदवार व डीडीसी काउंसिल के साबिक चेयरमैन नजीर अहमद खान ने एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख की मौजूदगी में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। वाजरे मज़कूरा हल्का दिलचस्प मरहले में उस वक्त दाखिल हुआ क्योंकि कल शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर सभी पार्टियों ने अपने नामजद उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अलबत्ता कल देर शाम को जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीनियर व बाअसर शिया लीडर आगा सईद महमूद के ऐलान से ही हल्के में गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी और आगा सईद महमूद ने आज दोपहर को अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि उनके हमरे यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्टी के लीडर जिनमें एमएलए भीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी, अली मोहम्मद डार, सैफुद्दीन भट्ट और सीनियर लीडर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बडगाम से इंतखाब लड़ने पर मजबूर किया गया और आगा सईद रूहुल्लाह मुहिम में शामिल होंगे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी की दीबा जान, अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार और आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मोहिद्दीन ने भी कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस तरह मज़कूरा हल्के में कुल 19 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए और ये मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद नजर आ रही है। ताहम असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद और पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर के दरमियान तवक्को किया जा रहा है। वही गौरतलब बात है कि आगा खानदान के 4 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान में उतरे हैं। इधर गुज़श्ता 2 दिनों से मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। ताहम उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरी वफादारी मेरे ज़मीर और उसूलों के साथ है क्योंकि मैं अपने खानदान में अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगा रूहुल्लाह मेहदी आगा सईद महमूद को सपोर्ट करेंगे या किसी और उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाएंगे। ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। यह बताता चलूं कि 22 अक्टूबर को जांच पड़ताल होगी और 24 अक्टूबर नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। दरियासला आज वादी कश्मीर में अलमदारी कश्मीर का 606वां उर्स के सिलसिले में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी और रूह परवर मजालिस में शिरकत की और इस हवाले से जियारतगाहों और खानकाहों में शब खानी, कलामी शेखुल आलम और खतमातुल मौज़मात की रूह परवर मजालिस मुनक़िद की गई। ताम सबसे बड़ी तकरीब वस्ती कश्मीर के बडगाम के सराज शरीफ में शेखुल आलम की आस्तानी आलिया में मुनक़िद हुई, जहाँ पर रवायती अंदाज में दरूद अज़कार, नात मुनक़बत और कलामी शेखुल आलम की मजालिस दिन भर जारी रही, जिसमें वादी कश्मीर से आए हुए हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिन्हें अलमदारी कश्मीर और नुंद्रिश के नाम से भी जाना जाता है, काबिल जिक्र है कि कल शाम से ही ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद आस्तानी आलिया के अहाते में दाखिल हो रहे थे और अपने अपने हाजात की रवाई के लिए दुआएं मांग रहे थे, जबकि हर नमाज के बाद अकीदतमंद तबरुकात की दीदार से फैज़याब हुए। और उसके सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बुलंद पाए वली कामिल के सालाना उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है और जिला इंतजामिया ने उर्स के सिलसिले में तमाम मशीनरी को मुतहरिक रखा था। इधर आज बीरवा इलाके के चेरहार गांव में 12 साल जियान रशीद परे और मीरपुरा बीरवा में एक नौजवान जेर तामीर मकान की छत से गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अगरचे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। चराज शरीफ में उर्स शेखुल आलम और बडगाम हल्का इंतखाब की ताज़ा सरगर्मियाँ, यूनिस पारे की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ज़िमनी इंतखाब में शानदार फतह से हमकिनार होंगे। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला पार्टी उम्मीदवार के साथ उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बडगाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज़ जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होकर बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके
नामजदगी के कागज़ पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला अकेला फारूक साहब का नहीं था। फारूक साहब ने अपने तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाई इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो आज बड़गाम में उस वक्त मौजूद थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर और कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार की तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों का एतमाद खो दिया है, चूंकि इस पार्टी ने जो वादे इलेक्शन से पहले किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। कश्मीर को इन्होंने मैं धोखा ही कहूंगा, धोखा दिया है। कल एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से देखने को मिली। एक साल पहले वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, जहां गरीब लोग हैं पता नहीं पावर कब आए कब जाए, और फिर ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी स्मार्ट मीटर लगने नहीं देगी, और कल वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनकी आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है इसलिए बड़गाम के किसी गरीब के घर भी लगे क्योंकि उनकी आंटी और गरीब की आंटी बराबर ही है। अरे तुम तो गोल्डन स्पून से सिल्वर स्पून से खाने वाले लोग हो, तुम गरीबों के साथ क्या तुलना करे हो, क्या कंपैरिजन करे हो। इन सारे धोखों को बेनकाब करने के लिए बड़गाम की जनता ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के हित की जो पॉलिसीज हैं हम ग्राउंड पे लेके निकलेंगे और जरूर ये सीट जीतेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों के साथ बार बार हर फ्रंट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फरेब किया है, कहीं न कहीं कश्मीर की जनता आज मजबूर है। हालांकि अल्टरनेट ढूंढने में कश्मीर की जनता निकल चुकी है। अब वो अल्टरनेट भाजपा में देखते हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग कश्मीर में होने वाली है, वो परिवारवाद के खिलाफ होगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जो आज बड़गाम में उस वक्त मौजूद थे जब पार्टी के लीडर आगा सैयद मोहसिन ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इधर पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने जब आज अपने कागजात जमा कराए तो उनके साथ साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा के अलावा मंजूर अहमद वानी और दीगर लीडरान भी थे। इन रोशनियों का त्यौहार दिवाली के सिलसिले में मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बाजारों में गैर मामूली रौनक पाई जा रही है। जहां एक तरफ जम्मू के शहर के बाजार दिवाली के सिलसिले में गुज़श्ता कई रोज से सजे सजाए पाए जा रहे हैं, वहीं वादी कश्मीर में भी कई मकामात पर मंदिरों के साथ साथ अहम इमारत रोशनियों से जगमगा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि यह त्यौहार जम्मू कश्मीर के लिए दायमी अमन और खुशहाली की नवीद साबित हो। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा बहरी जहाज INS विक्रांत पर बहरिया के जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म हर साल दिवाली का त्यौहार फौजी जवानों के बीच ही मनाते हैं। आज INS विक्रांत पर बहरिया के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए वज़ीर आज़म मौसूफ ने कहा कि यह जहाज सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत की मेहनत, दबदबे और अहद बस्तगी की अलामत है। दरअसल ज़राअत बागबानी, दही तरक्की और पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार में ऑटम फ्लावर फेस्टिवल क्रिसैंथेमम शो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने यूनिवर्सिटी के फूलबानी शोबे को तहनीत पेश करते हुए कहा कि फूलों का यह मेला मौसम ख़िज़ां में सियाहत को फ़रोग़ देने की एक अहम कोशिश है और इस तरह की कोशिशों से सियाहती शोबे को मुतनव्वे बनाने के हुकूमत के अज़्म का इजहार होता है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। लुबाब पब्लिकेशंस ने अदबी मरकज़ कमराज और अल अराद फाउंडेशन के इश्तराक से कल 19 अक्टूबर को
कल्चरल अकादमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मारूफ अदीब और कलमकार सैयद सादुद्दीन सैदी की तसनीफ नूर नूरांग की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। तकरीब में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों और शायरों की खासी तादाद मौजूद थी। तकरीब की सदारत जाने माने अदीब और कलमकार प्रोफेसर अयाज रसूल नाजकी ने की, जबकि सीनियर सियासी लीडर शरीफुद्दीन शारिक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ऐवान सदारत में नामवर स्कॉलर प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और आकाशवाणी श्रीनगर की साबिक सरबराह रुखसाना जबीं भी मौजूद थीं। निज़ामत के फ़राइज़ शबनम तिलगामी ने अंजाम दिए। कल के प्रोग्राम में हमने पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट नश्र की थी, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ अस्पतालों बिलखुसूस ज़िले अस्पताल पुलवामा, SDH त्राल और PHC रोहमू में पाई जाने वाली अमले की किल्लत के मामलात उभारे गए थे। रिपोर्ट में ज़िले के कई दीगर अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमी का अहाता भी शामिल था, ताहम वक्त की तंगी के बायस रिपोर्ट का कुछ ही हिस्सा नश्र हो पाया। सो आज हम ये रिपोर्ट फिर एक बार नश्र कर रहे हैं। जहां एक तरफ हुकूमत जम्मू कश्मीर में तब्बी शोबे को बेहतर बनाने के लिए बुलंदबांग दावे कर रही है, वहीं जनूबी जिला पुलवामा की आबादी को आज भी सेहत-ए-आमा के हवाले से मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में जहां लंबे वक्त से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की किल्लत को लेकर मुकामी आबादी फरियाद कर रही है, वहीं जिला भर के दूर दराज मकामात में भी सेहत-ए-आमा के हवाले से लोग मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। PHC रोहमू, जो कि रोहमू, फ्रेसीपोरा, गोसू, कमराजीपोरा, तुजन, मित्री गांव और मजाफात की 45,000 आबादी को कैटर कर रहा है कि अंदर स्टाफ की कमी और बुनियादी ढांचे की आदमी दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ डॉक्टर, क्वार्टर और गेट पर 20 साल कबल काम तो शुरू किया गया, लेकिन ये काम हनूज तशने तकमील है। सब जिला अस्पताल त्राल का हाल भी बेहाल है, जहाँ डॉक्टरों के साथ साथ नीम तबी अमले की शदीद किल्लत ने अस्पताल के निजाम को मफलूज करके रख दिया है। इस पर तुरा ये कि रेडियोलॉजिस्ट न होने से गरीब बीमारों को USG के लिए प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है, जबकि इसके अलावा अस्पताल में ENT और आर्थो डॉक्टर्स न होने से दर्जनों बीमारों को रोजाना बुनियादों पर श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। हद तो यह है कि अस्पताल में बीमारों को बैठने के लिए डॉक्टर चैम्बर्स के पास टूल तक दस्तियाब नहीं है और अलील बीमारों को घंटों तक मजबूरन खड़ा रहना पड़ता है। मुकामी लोगों के मुताबिक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल का बोर्ड तो यहाँ पर नस्ब किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से कागजी तौर पर यहाँ CHC के हिसाब से ही स्टाफ तैनात किया गया है और अब अस्पताल के वार्डों में ज्यादातर बीमार इंटर्नशिप करने वाले कम तरबियत याफ्ता अफराद के रहम करम पर होते हैं। ज़राए ने शहरीन को बताया कि 2 साल कबल B ग्रेड सर्जन और B ग्रेड गायनी 2 डॉक्टर यहाँ से सबकदोश हुए, लेकिन हद तो यह है कि 2 साल गुजरने के बावजूद उन डॉक्टरों के बदले यहाँ नया स्टाफ नहीं भेजा गया। मैं आपको बता के चलूं कि कई माह कबल वजीर सेहत सकीना इतू ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन बाद में वो दौरा सियासत का शिकार हुआ, जिसकी वजह से यहाँ नई हुकूमत के बाद भी कोई तब्दीली जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रही है। इसी तरह NTPHC बटागुन में लाखों रुपए मालियत का एक्सरे प्लांट बरसों से टेक्नीशियन न होने से जंग आलूदा हो रहा है, जबकि आरिफल और NTPHC डारसरा में एक्सरे टेक्नीशियन न होने से लोगों की राहत के लिए मौजूदा मशीनरी किसी काम की नहीं रहती। NTPHC चंद्रीगाम, NTPHC बटनूर, NTPHC कड़ील और NTPHC हारी पारीगाम का हाल भी बेहाल है। मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक ने आज शाम शहरबीन को बताया कि सब जिला त्राल में हेल्थ सेक्टर के अंदर आवाम को मुश्किलात हैं, ताहम उन्होंने सभी मामलात के मुतालिक वजीर सेहत सकीना इतू से बात की है, जिन्होंने यकीन दिलाया है कि वो अवलीन फुर्सत में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल और दीगर अस्पतालों में मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इस बीच CMO पुलवामा डॉक्टर तहमीना ने आज शाम शहरबीन के साथ बात करते हुए बताया कि जिला भर में पैरामेडिकल स्टाफ की किल्लत तो है, ताहम डॉक्टर्स की किल्लत कहीं पर भी नहीं है। सरकारी दावों और अवामी इल्जामात के बाद सच क्या है, ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर उड़ी से जफर इकबाल का कहना है कि आज सेहत व तिब्बी तालीम और सेहत की तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने बारामूला ज़िले में मुख्तलिफ सेहत मराकज़ का अचानक मुआयना किया। बताया जाता है कि मौसूफा ने PHC शीरी और PHC बोनियार का मुआयना करके वहाँ सहूलियात की फराहमी का बगौर जायज़ा लिया और इस मौके पर मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की। इस मौके पर उनके हमरा MLA उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी, MLA बारामूला जावेद हसन बेग और अफसरान भी थे। इलाहाबादी वजीर तालीम ने बोनियार उड़ी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। हमने अभी कुछ वक्त पहले
सकीना इत्तू से बात की और पूछा कि अपने दौरे के दौरान क्या उन्होंने मज़कूरा अस्पतालों की सहूलियात को माकूल पाया और साथ ही उनकी दानिस्त में पुलवामा ज़िले के अस्पतालों में पाए जाने वाले मसाइल भी लाए। मौसूफा ने सबसे पहले आज के दौरे की निस्बत से बात की। एक तो हमने बोनियार का जो PHC है वहाँ का विजिट किया है, उसके अलावा कुछ एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी इनॉग्रेशन की है और कुछ नए प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन डाल दिया है। जहाँ तक बोनियार और सीरी का जो PHC है दोनों, वहाँ मैं गई थी। PHC में कुछ कमियां है। एक तो जो बोनियार है वहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कुछ कमी है, कुछ बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अब मैंने उनको डायरेक्शन दी है कि आगे के लिए लैंड अगर वो दे वहाँ पे तो हम उनको कोई बिल्डिंग जो है एडिशनल वो वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि वो उसका बहुत कैचमेंट एरिया है उस PHC का, तो बहुत ज़रूरत है। दूर दराज साइड से वहाँ लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, जिनको वहाँ अच्छा खासा हॉस्पिटल जो है वो मिलना चाहिए। डॉक्टर्स वहाँ पे लगभग स्टाफ ठीक था। PHC बोनियार में थोड़ा सा सीरी में कुछ उनका एक्सरे टेक्नीशियन की कमी थी, तो वो मैंने उनसे बात की है, उसको मैं चेक करूंगी। एक्सरे तो है उनके पास एक्सरे प्लांट, लेकिन उनके चलाने वाला टेक्नीशियन जो है उसकी कुछ दिक्कत थी उनको, वो मैंने वहाँ पे हिदायत दी है डिपार्टमेंट को, उसको हम देखें। पुलवामा का जो ज़िले अस्पताल है वहाँ के बारे में शिकायत है कि वहाँ पर अमले की कुछ कमी है, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। साथ में जो SDH अस्पताल है वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है। साथ में ऑर्थो और गानी का जो डॉक्टर वहाँ पे था पहले तैनात, वो वहाँ से ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अभी तक मुतबादिल प्रोवाइड नहीं हो पाया है। देखिए इशफाक साहब, हर जगह कंसल्टेंट नहीं रख सकते हैं। जहाँ सर्जरी नहीं होगी वहाँ कंसल्टेंट को ज़ाया करना, सर्जन को ज़ाया करना, एनेस्थीसिया डॉक्टर को ज़ाया करना, वो पॉसिबल नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन अब जहाँ जहाँ नीड है, देखिए एक जब से सरकार बनी है 509 तो हमने नए डॉक्टर्स लगाए, उनको PHC पब्लिक सर्विस कमीशन से क्लियर करा के दूर दराज इलाकों में भेजा है, और 140 नए कंसल्टेंट्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने क्लियर किया, उनको भी भेजा है। और ऑलरेडी एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो है वहाँ GMCs में जो नीड होती है उसको किया जा रहा है वहाँ पे। अब लोग कहते हैं डिस्पेंसरी में भी 10 डॉक्टर होने चाहिए। जो ऑलरेडी आपके पास सैंक्शन है वही होगा, जो सैंक्शन नहीं है, क्रिएशन नहीं है, वो डिपार्टमेंट नहीं ला सकता, नहीं रख सकता है। और जो नीड होगी, जैसे PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके पास, वहाँ अगर कोई सर्जरी होगी उस सर्जरी का वहाँ पे कंसल्टेंट आएगा। अगर सर्जरी नहीं होगी तो वहाँ डॉक्टर वो कंसल्टेंट नहीं रखा जाएगा। लेकिन जहाँ पे होता है, जहाँ पे एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स, अगर सैंक्शन होगा, PHC है, सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सैंक्शन है, वहाँ डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है एज पर अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे डॉक्टर्स भेजे जाए। आपने खुद इसी प्रोग्राम के जरिए कई बार इस बात का इतराफ़ किया है कि पिछले 5-6 साल के दौरान जिस पैमाने की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी, चाहे मेडिकल स्टाफ की चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की, वो नहीं हो पाई है, और आप इस गैप को फिल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो क्या तवक्कुर रखी जा सकती है आने वाले महीनों में, क्या कुछ पॉसिबल है? साहब आपको कहा है, जब से सरकार बनी है 509 नए डॉक्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए, 140 कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड से थ्रू करवाए हैं, 624 पैरामेडिकल जो है स्टाफ, उसके लिए ऑलरेडी हमने बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर किए हैं पोस्ट, 626 पोस्ट। और मैंने उनसे मीटिंग भी की कि हमें काफ़ी दिक्कत है पैरामेडिकल स्टाफ की, इनको जल्दी से रिक्रूट करके भेज दीजिए। इसी तरह एकेडमिक अरेंजमेंट किया जा रहा है, उससे जो ये कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और जो पॉसिबिलिटी है NHM के जरिए कई डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है ऑलरेडी, और भी जहां दिक्कत है वहां किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, उसमें ये नहीं है कि जब से सरकार बनी है तब से रैशनलाइजेशन की, जो अटैच डॉक्टर्स थे उनको डिटैच कर दिया, अपने अपने प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वापस भेजा गया। तो ये चीजें ही कर सकती है सरकार, और ये वो ऑलरेडी कर रही है। ये थी सेहत तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू। शहरबीन सुनते रहिए। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,
फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। क्या आप रात को बार बार बाथरूम जाते हैं? नींद में खलल या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ है? पेशाब के बहाव में रुकावट से थक चुके हैं? ये प्रोस्टेट के बढ़ने की अलामत है। 100 में से 35 मर्दों का प्रोस्टेट 50 साल से ज्यादा उम्र के बाद बढ़ना शुरू करता है। मैजिक फूड टेक्सो स्कॉस्ट कश्मीर स्टार्टअप प्रोडक्ट का तैयार करदा मैजिक फूड टेक्सो सप्लीमेंट एक सेहतमंद प्रोस्टेट को सपोर्ट करने, पेशाब के मामूल के बहाव को फरोग देने में मदद करता है। ये सेंट्रल FSSAI और आयुष से सर्टिफाइड है। आप भी याद रखिए, स्कॉस्ट कश्मीर स्टार्टअप प्रोडक्ट मैजिक फूड टेक्सो। अपनी पहली पैक हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.cashmirbiotech.com पर जाएं और बराह रास्त अमेजॉन से ऑर्डर करें या फोन नंबर 7051311389 9103524624 पर राबता कायम करें। शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने दिवाली के मौके पर आज तुलमुला में खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी और वहां मौजूद अकीदतमंदों में मिठाइयां तकसीम की। GM शाहीन ने जुमला हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि यह त्यौहार यकजहती और रवादारी की हमारी बरसों पुरानी रवायात की तजदीद साबित हो। इधर श्रीनगर कल्चरल फोरम की जानिब से आज एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर मिर्जा रऊफ हुसैन बेग की तसनीफ नूर वाहिद की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में मारूफ स्कॉलर डॉक्टर गुलाम अली गुलजार, साहित्य अकादमी कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक सरबराह बशीर आरिफ भी मौजूद थे। और इधर महजूर नगर के मलिक लेन, रोज लेन कॉलोनी, जाफरान कॉलोनी और रहीम बाग के लोगों ने शिकायत की है कि वहां जगह जगह कूड़े के ढेर जमा होने से न सिर्फ अफूनत फैली है बल्कि इन जगहों पर कुत्तों की बड़ी तादाद जमा होती है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। बताया जाता है कि बदबू की वजह से लोग अपनी खिड़कियां भी नहीं खोल पाते हैं और न ही शाम के बाद कुत्तों के डर की वजह से बाहर निकल पाते हैं। मुतालिक आबादी ने म्युनिसिपल हुक्काम से फौरी कार्रवाई की अपील की है। और प्रोग्राम के आखिर में कुलगाम से फारूक राथर की इतला के टंगमर्ग अहरबल और छतबल कुलगाम के इलाकों में कल दौरान शब 2 रिहायशी मकानात आग की अलग अलग वारदातों में खाकिस्तर हो गए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की